Jai Hind, all my dear students. How are you all? I hope you all are fine, right? So last time we have discussed the plant tissue, meristematic tissue हमने पढ़ा था, right? So in meristematic tissue we have discussed all these parts: apical meristem, intercalary meristem, and the lateral meristem. Clear? So एक बार देख लेते हैं इसको. Apical meristem, it is responsible for the growth of stem and roots in the plants. It is found in the tips of roots and stems. Then intercalary meristems, where they are present, these tissues are present at nodes or stem regions between the places or at which leaves attach. फिर lateral meristem कहाँ present है? It is responsible for increasing the circumference of the middle part of the stem, middle portion of stem में, and hence found there. ठीक. फिर as the cells of this tissue are very active, तो cells कैसी होंगी यहाँ पर? Active होंगी. They have dense cytoplasm, right? Dense cytoplasm होगा. Dense cytoplasm means they have more protein synthesis there, thin cellulose cell walls, and prominent nuclei देखने को मिलेगा उसमें. They lack vacuoles. फिर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई कैन वी थिंकिंग वाई दे वुड लैक वैक्यूल्स. वहाँ पर वैक्यूल्स क्यों नहीं होते? याद आया या नहीं है आपको? कैन वी थिंकिंग why they would lack vacuoles. So क्या इसका आंसर हो सकता है? ठीक है, meristematic cells divide frequently and gives rise to new cells. So because meristematic cells, they are having the capability of division and hence they need dense cytoplasm and thin cell wall. So they are having a dense cytoplasm, right? So they are having a dense cytoplasm and thin cell wall. Vacuoles cause hindrance in the cell division. So what the vacuoles will do? They will hindrance in cell division. They will affect the cell division, right? As it full of cell sap, right? The vacuoles is full of cell sap and to provide the turgidity and rigidity to the cell. Also vacuoles basically serves the purpose of storing the nutrients, right? Excess of salt, etc. Clear? I hope now the question is clear. So why they are lacking the vacuoles? Now today we are moving to the next section of this chapter, right? तो फर्स्ट टॉपिक जो हमने कवर करा था उसमें क्या था? प्लांट टिश्यू. ठीक है, प्लांट टिश्यू में भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पढ़ लिया. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 पार्ट में डिवाइड है: एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, राइट? एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी. नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस? वी आर गोइंग टू डिस्कस द परमानेंट टिश्यू. सो परमानेंट टिश्यू is divided into 2 categories. One is your simple permanent tissue and other is your complex permanent tissue. And the simple permanent tissue again divided into 3 parts. ये इसके साथ नहीं है, कभी ये सोचने लोगों कि ये इसके नीचे लिख दिया है. ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट नहीं है. ये किसका पार्ट है यहाँ पर? परमानेंट टिश्यू का. तो सिंपल जो होगा उसमें क्या क्या है यहाँ पर? पैरेन्काइमा. ठीक है, क्या क्या है यहाँ पर? पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. ये डिटेल में भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, डिटेल में भी हम देखेंगे. अभी हम बेसिक फ्लो चार्ट देख रहे हैं कि भाई क्या हमें इसमें डिस्कस करना है. तो क्या लिखा है यहाँ पर? जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड द स्क्लेरेन्काइमा. ठीक है, SCLERENCHYMA, स्क्लेरेन्काइमा. फिर कॉम्प्लेक्स permanent tissue, right? Complex permanent tissue divided into 2 parts. One is your xylem, other is your phloem. So first part we have finished, that is your meristematic tissue. Meristematic have 3 parts: apical, lateral and intercalary.
So now we are going to discuss the simple permanent tissue. सिंपल परमानेंट टिश्यू में कौन सा पार्ट पढ़ना हमें? पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. फिर कौन सा पार्ट डिस्कस करेंगे हम लोग? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड द फ्लोएम. राइट, चलिए. तो फर्स्ट वन इज योर परमानेंट टिश्यू. पहले क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया. यहाँ पर परमानेंट टिश्यू, व्हाट हैपन्स टू द सेल्स फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? व्हाट हैपन्स टू द सेल्स फॉर्म्ड बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? क्या होगा उन सेल्स का? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऐसी सेल्स जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बन रही हैं. द सेल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू often have to take a certain role in the plant and thus they lose the ability to divide. Right, so what they are telling that these cells are formed by the meristematic tissue. The cells that are formed by the meristematic tissue, they take a certain role. ठीक है, उनका कुछ एक certain role होगा in the plant and they lose their ability to divide. राइट, उनकी डिवीजन की एबिलिटी क्या हो जाएगी? वो खत्म हो जाएगी. दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड फॉर्म मोर सेल्स. ठीक है, क्या होगा यहाँ पर? दे लूज देयर एबिलिटी. ठीक है, दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड. एज ए रिजल्ट दे फॉर्म ए. ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? देन दे बिकम्स द परमानेंट टिश्यूज ऑफ द प्लांट्स. क्लियर, समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो क्या है इसका मतलब? क्या हुआ यहाँ पर? द सेल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑफन हैव टू टेक ए सर्टेन रोल. दे विल टेक ए सर्टेन रोल इन द प्लांट एंड दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड. राइट, दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड फॉर्म मोर सेल्स. दे देन बिकम द परमानेंट टिश्यूज ऑफ द प्लांट. फिर क्या हो जाएगा? ये परमानेंट टिश्यू बन जाएगा. ठीक है, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाएगा. फिर एक वर्ड है यहाँ पर डिफरेंशिएशन. ठीक है ना, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन, द प्रोसेस बाय विच सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट्स देमसेल्व्स इनटू ए परमानेंट टिश्यू बाय टेकिंग ए फिक्स्ड शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन. मतलब क्या हुआ किसका? डिफरेंशिएशन का. कि भी क्या करेंगे? ठीक है, जैसे कि उन्होंने क्या करा, परमानेंट टिश्यू जब बन गई, परमानेंट टिश्यू के बाद क्या हुआ? वो एक परमानेंट शेप को अटेन कर लेंगे, परमानेंट शेप को अटेन कर लेंगे, परमानेंट साइज को अटेन कर लेंगे. ठीक है, परमानेंट शेप को अटेन करा, परमानेंट साइज को अटेन करा, और उसी फंक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? डिफरेंशिएशन कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग उसको? डिफरेंशिएशन कहते हैं. द प्रोसेस बाय विच सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट्स देमसेल्व्स, राइट, इनटू ए परमानेंट टिश्यू. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस में कन्वर्ट हो गई? वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गई. कन्वर्ट देम इनटू परमानेंट टिश्यू बाय टेकिंग ए फिक्स्ड शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. राइट, तो अभी हमने देखा कि परमानेंट टिश्यू में हमने क्या पढ़ा? परमानेंट टिश्यू क्या होगा उसके अंदर? व्हाट हैपन्स टू द सेल्स फॉर्म्ड बाय द परमानेंट टिश्यू? उन सेल्स के अंदर क्या होगा? ठीक है, उन सेल्स के अंदर क्या होगा जो कि किससे बन रही हैं? वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से. फिर एक वर्ड हमने समझा यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या है. ठीक है, एक वर्ड के यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या है? एक एक्टिविटी है. ठीक है, एक एक्टिविटी मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ. एक एक्टिविटी है यहाँ पर, ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पर कि भाई अभी हम कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम एक एक्टिविटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो टेक ए प्लांट स्टेम एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर कट इनटू वेरी थिन स्लाइसेस ऑफ सेक्शन. सो वी आर टेकिंग एनी सॉफ्ट पार्ट ऑफ द स्टेम, right, and with the help of a sharp blade we will cut them into pieces. So what we are cutting the TS section. TS means your transverse section, right? So we are cutting the transverse section. After that, now stain the slices with safranin. Safranin, it is used for staining purpose. So place one neatly cut slide on a
plate one neatly cut section on a slide. So what we are doing, we are taking slide, right? We are taking a transparent slide and we are putting that section on the slide, and further we will put a drop of glycerin. So cover with the help of a cover slip and observe under a microscope. So observe the various cells and their arrangement. So if we prepare this slide, when the school will open, we can prepare this slide, right? So it is just फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हाउ वी आर डूइंग द एक्टिविटी. तो क्या होगा, ये माइक्रोस्कोप में हमें ऑब्जर्व करना है. किसके अंदर ऑब्जर्व करना है, ये माइक्रोस्कोप में. सो व्हाट दे आर टेलिंग, वी हैव टू कवर विद द कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप, एंड अंडर ए माइक्रोस्कोप वी आर एबल टू ऑब्जर्व द सेक्शन ऑफ स्टेम. दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन. देख कट कर लिया, ठीक है, कट, तो हमें ये चीज़ उसमें ऑब्जर्व होंगी, ठीक है, ये ऑब्जर्व होंगी. यहाँ पर देख सकते हैं ये बाहर वाली लेयर क्या है, यहाँ पर एपिडर्मिस, देन द हाइपोडर्मिस, दिस इज द कॉर्टेक्स पार्ट, ठीक है. ये कोई आपको बुक में करनी नहीं है एक्टिविटी, ठीक है, ये आपको बिल्कुल नहीं करनी, सिर्फ ये आपको एक प्रैक्टिकल पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जा रही है, ठीक है. इट इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल पर्पस, राइट. तो ये एंडोडर्मिस हो गया, ठीक. ये सारी चीज़ हमें इसमें देखने को मिल रही है. कैम्बियम है, फ्लोएम है, ठीक, जाइलम. सो दिस शोइंग द सेक्शन ऑफ ए स्टेम, राइट. दिस एक्टिविटी शोइंग ए सेक्शन ऑफ ए स्टेम. नाउ वी आर मूविंग बैक टू आवर टॉपिक. हम अपने टॉपिक पर दोबारा आ जाते हैं, ठीक है. अभी हमने क्या डिस्कस करा था, हमने डिस्कस करा था अभी परमानेंट, ठीक है, परमानेंट टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा. परमानेंट टिश्यू में भी हमने स्टार्ट नहीं करा, अभी हमने कुछ बेसिक चीज़ जानी है, ठीक है ना. डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है. फिर व्हाट हैपन्स टू द सेल फॉर्म्ड बाय ए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है. क्या होगा, दे विल अटेन, they take up a specific role, they take up a specific role and they lose their ability to divide, ठीक है. they take up a specific role and they lose their ability to divide, as a result they form a permanent tissue. तो उससे क्या बन जाएंगे, परमानेंट टिश्यू बन जाएंगी. और इसी प्रोसेस को, दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ए परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन, उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन कहते हैं. क्या कहते हैं उसको, डिफरेंशिएशन कहते हैं. क्लियर.